Hello children, this is going to be my last activity of 12th chapter, that is electricity 10th class की साइंस की NCERT बुक्स में से। तो 12th क्लास की 10th क्लास की 12.6 एक्टिविटी से पहले आई वांटेड टू जस्ट शेयर सम थिंग्स विच आई थिंक आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर कि मैंने आप लोगों को बताया कि नहीं बताया तो चलो दिस इज़ द परफेक्ट टाइमिंग राइट। तो हमारे को पता है कि भाई सीरीज ऑफ रेजिस्टर्स में ओनली पोटेंशियल डिफरेंस इज गोइंग टू चेंज एंड माई करंट इज गोइंग टू बी रिमेनिंग द सेम राइट, because it's a closed circuit, and in closed circuit no matter how many resistance we have, resistance does not change. As resistor is not changing, my current will automatically remains the same, means it is also not changing right. Now what is changing in parallel resistors? The V is remaining the same. Okay, the V remains same over here. What changes? The resistance changes. Resistors की value change करेगी तो automatically my current value is also changing. Another thing which we should know, the third thing is कि in parallel resistors there has to be a connection. Parallel connection will always form when the resistors starting and ending point are joined together, है ना. If they are not joining together, that means they are all different resistors and joining, and they are continuing with the different batteries and different sort of current supply also. But if they have a joining point, then only we can say that these are parallel resistors. And another thing is which we learned is, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये है कि वी हैव ऑल 3 वोल्ट मीटर्स राइट, है ना. सो दीज 3 वोल्ट मीटर्स सेपरेटली आर गोइंग टू गिव मी द सम ऑफ this voltmeter in total, right. This is the voltmeter which is calculating as a whole, and this total voltmeter number is going to be equal to the separate voltmeters which we have learned in the activity 12.3 and 12.4 also. अगर आपने नहीं देखा है तो आप वो भी देख सकते हैं मेरी एक्टिविटीज़, ठीक है. नेक्स्ट थिंग विच आई वांटेड टू से इज़, जैसे इस वो तो इसी से रिलेटेड है जो हम अभी बात करने जा रहे हैं. दिस इज़ कम्प्लीटली रिलेटेड टू दिस. इसमें हम लोग क्या बात कर रहे हैं, इसमें हम लोग बात कर रहे हैं टू मेजर द करंट एमीटर इज ऑलवेज प्लेस्ड इन अ सीरीज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना. Series of electric current, emitter is always placed in this series only. Voltmeter is always placed opposite, it is not in the series क्या है भाई, यहाँ से शुरू हो रहा है, this is starting point, this is the ending point, and in between starting point and ending point we can see the emitter, but we will never see the voltmeter. Why? Because it is always placed opposite, ठीक है ना. अब यहाँ पे क्या है, करंट रीडिंग विल बी डिफरेंट इन ईच एमीटर अनलाइक पोटेंशियल डिफरेंस इन अ सर्किट. वाई? बिकॉज व्हेन वी आर टॉकिंग about the parallel resistors, at that time our resistors are changing, so current reading will be different because resistors reading are different. Understood children? ठीक है. with this note हम लोग आगे बढ़ते हैं एक्टिविटी में. तो ये एक्टिविटी हमसे क्या कह रही है कि भाई हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन है एक्स एंड वाई का, ठीक है, और इसमें हमारे पास रेजिस्टर्स है R1 R2 R3 राइट. एंड देन व्हाट दे आर टेलिंग, देखिए इट इज़ कनेक्टेड विद अ बैटरी एंड इट इज़ कनेक्टेड विद अ की एंड इट इज़ कनेक्टेड विद एन एमीटर एज शोन इन द फिगर, ठीक है. अब यहाँ पे हमसे क्या करें, ऑल्सो कनेक्ट अ वोल्ट मीटर इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज, प्लग द नोट द एमीटर रीडिंग, दिस इज द वोल्ट मीटर विच वी हैव कनेक्टेड पैरेलल टू द सीरीज. सी, पैरेलल टू द सीरीज, तो वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल टू द सीरीज रहता है, ठीक है ना. अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि भाई इट गिव्स पोटेंशियल डिफरेंस वी अक्रॉस द कॉम्बिनेशन, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर इज ऑल्सो वी. दिस कैन बी चेक्ड बाय कनेक्टिंग द वोल्ट मीटर अक्रॉस ईच इंडिविजुअल रजिस्टर. अगर हम लोग ईच इंडिविजुअल में भी अगर हम लोग दिस कैन बी शोड, ठीक है ना. तो ये कैसे हम लोग ईच इंडिविजुअल में कैसे ईच रजिस्टर में हम लोग कैसे वोल्ट मीटर लगाएंगे, ऐसे लगाएंगे. ओके, from S to T 1 voltmeter, from PQ 1 voltmeter, for LM 1 voltmeter, which is going to be just taking the reading of R1. It is going to take V2 is going to take the reading of R2, V3 is going to take the reading of R3, ठीक है ना. This is the total voltmeter and this total voltmeter is taking the reading of R1 R2 and R3. Understood children? ठीक है ना. तो अब हमसे ये और क्या कह रही है, हमसे ये एक्टिविटी हम देख लेते हैं. तो ये हमसे कह रही है कि भाई take out the plug and the key, remove the ammeter, ठीक है, and the voltmeter from the circuit, insert the ammeter in a series with the resistor R1 and show similarly measure the current in R2 and R3. Let I be I2 I3, है ना, and what will be the relation between I I1 I2 and I3.
So let's see, I is dividing into I1, I2, I3, right? Like over here. ठीक है ना? Why? Because we have 3 resistors and current is always dependent on resistors. ठीक है ना? तो they are directly proportional to each other. If resistor is changing, current is changing. We already know that one. ठीक है? Flow of current will depend on each resistors. We have already discussed. Higher the resistance, decrease the current. Decrease flow of current will be lower the resistance, increase flow of current will be. ठीक है ना? इतना तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं. फिर ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमारे को पता है कि V इज इक्वल टू आई आर, लेकिन हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है यहाँ पे करंट. दिस इज व्हाट दे आर सेइंग ओवर हियर, राइट? करंट, है ना? तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर दिया है, ऑब्वियसली ये यहाँ पे आ जाएगा तो V/R हो जाएगा. ठीक है ना? ये यहाँ पे रह गया तो ऑब्वियसली R यहाँ पे चला गया तो V/R हो गया. अब RS इज टेलिंग मी द रेजिस्टर ऑफ टोटल. ठीक है ना? तो जैसे हमारा I इज इक्वल टू IS इज इक्वल टू VRS हो गया है, मतलब करंट ऑफ टोटल upon V upon R resistors of total. Therefore we can write I1 upon V by R1, I2 V by R2, I3 is equal to V by R3, right? अब इसमें सबसे ज़्यादा कॉमन क्या है? V कॉमन है ना? तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? अभी I इज इक्वल टू V है ना? हम लोग यहाँ पे एज I इज इक्वल टू VR इंस्टेड ऑफ I वी कैन ऑल्सो राइट दिस थिंग V, राइट? तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिख दिया? इंस्टेड ऑफ आई एम राइटिंग VRS. तो VRS इज इक्वल टू VR/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3. समझ में आ रहा है चिल्ड्रन? ठीक है, क्योंकि ये इसके इक्वल है तो हम लोगों ने ऐसे लिख दिया. अब ये इसके इक्वल टू में तो हम लोगों ने ये लिख दिया. ठीक है, अब यहाँ पे क्या रहा है? एज V इज कॉमन तो हम लोगों ने क्या किया? V को कैंसिल कर दिया, लाइक वी हैव डन इन द प्रीवियस इक्वेशन ऑल्सो. इन दिस में भी हम लोगों ने 12.5 में भी ऐसे किया था ना. तो I1, ऑब्वियसली हम इसको कैंसिल करेंगे तो हम कुछ और नंबर नहीं लिखते, हम क्या लिखते हैं? वी अज्यूमिंग 1. व्हेन देयर इज नथिंग वी अज्यूम 1 ओवर देयर, राइट? तो यहाँ पे 1 लिख दिया ऊपर और नीचे आ गया RS का टोटल. जो RS का टोटल होगा, टोटल ऑफ ऑल द रेजिस्टर्स इज गोइंग टू बी द इक्वल ऑफ द टोटल ऑफ रेजिस्टर 1, रेजिस्टर 2 एंड रेजिस्टर 3. ठीक है ना? नाउ ये क्या कह रहा है? दिस शोज ग्रुप ऑफ रेजिस्टर्स जॉइंड इन पैरेलल इज इक्वल टू द सम ऑफ द होल इंडिविजुअल रेजिस्टर. ठीक है ना? दैट इज व्हाट आई हैव टोल्ड यू जस्ट नाउ, राइट? No value will come up as V place is taken by 1. Just now I've said you, right? If there is nothing written over there, we assume 1. That is what we do in chemistry also, right? है ना? अब हम लोग देख लेते हैं कि भाई आगे हमारी ये ख़त्म क्या कैसे हो रहा है. यहाँ पे भी हमसे ये यही बोल रहा है. Thus we may conclude that the reciprocal of equivalent resistance, reciprocal of equivalent resistors of group resistance, joined in parallel is equal to the sum of the reciprocal of individual resistance. ये मेरा ग्रुप रेजिस्टेंस है, ये इक्वल रहेगा मेरे रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस. दीज आर द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस R1, R2, R3. तो ये जैसे इक्वल रहेगा वैसे ही मेरा I भी इक्वल है. समझ में आ गया? Let to observe that the total current I is equal to the sum of the separate currents through each branch of this combination. each branch कौन सी है? ये each branch है, I1, I2, I3. ठीक है ना? तो I1, I2, I3 इक्वल टू है तो हमारा रेजिस्टेंस इक्वल है कि नहीं है, वो निकालने के लिए हमने इतनी सारी मेहनत करी है. अंडरस्टैंडिंग माई चिल्ड्रन? आई होप यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग. आई एम कीपिंग माई कैमरा स्टडी so that you can make the notes of this particular activity. This is me, Alice Raj. Please do like and share and subscribe my videos, and I am signing off.